So, in order to introduce content writing, as we already have seen, and I've asked you all what is content writing and what do you think is content writing. But in today's digital landscape where information is at our fingerprint, the power of effective communication, it cannot be underestimated, because there are certain things that needs to be communicated through your writing. You cannot always convey things to people sitting in any other continent through a message, a voice message, or a call. But if you want to introduce yourself, introduce your brand, introduce your products, you have to target that audience and talk to them through your content. So, content writing, where, wherever you go, whatever website are you visiting, you'll always see there is some information related to it written. You must have seen it, I believe, because even if you are like visiting Daraz app, you'll see descriptions there. If you are visiting any brand shop ऑनलाइन जे डॉट फॉर एग्जाम्पल, आपको वहां पे भी इंफॉर्मेशन नजर आती है। तो वो सारी जो है दैट इज राइटिंग। आपकी हर चीज हर पेज पे कुछ ना कुछ राइटिंग का प्रोसेस होता है। तो वो राइटिंग क्यों होती है? राइटिंग इज एक्चुअली द स्किल दैट in which we combine words to form a sentence. Basically, sentences convey your ideas, but to tailor them according to the audience need is actually writing. Furthermore, understanding content writing before starting it is very essential. Why? Because people are not aware of content writing itself. उनको लगता है कि this is an easy field because you just have to write. But further in the process of this course, further in this course, we will be discussing what are different types of content writing, how you do simple blogs, articles, and other types of writing. So yeah, it is not only uh, writing, it's informing your audience, it's engaging your audience in your brand and influencing readers to visit your websites, your blogs, your social medias, your newsletters, and everything that you want, that you are sending them to promote your brand or maybe your website or your online store. I hope everything is clear and everyone is getting everything. But if you do have a question, you can leave it in the chat box. I'll read it at the end of the session. So, what actually is how content writing is actually built? Effective writing is only possible if you have skill to write it. If you are asking a 5-year-old to write, लिख तो वो भी सकता है, but the thing is, do he does not have idea how to convince anyone. Someone will be able to write effectively is you, because you know your audience. Audience का मैं बार बार बहुत जिक्र कर रही हूँ, and we'll be discussing it further in the course. So what do we have next is what are the key skills that you require to do content writing. सबसे पहले तो आपकी language and grammar होनी चाहिए. If you guys think that content writing can only be done in one language, that is English, that is not the case. But content writing जो है वो उर्दू में भी हो सकती है, because there are pages that promote Urdu writing. Urdu digest pages होते हैं, Urdu newsletters होते हैं, and there are many other websites which are using Urdu. उसके अलावा बाकी लैंग्वेजेस और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है वर्ल्ड में। कुछ पेजेस जो होते हैं वो स्पेनिश में होते हैं, कुछ फ्रेंच में होते हैं, कुछ जर्मन में होते हैं। सो इन ऑर्डर टू कन्वे योर मीनिंग, कन्वे योर मैसेज टू द ऑडियंस, अच्छा, other than language and grammar, grammar is crucial. If you do not know how to make sentence or how to use grammar in your sentences, you'll not be able to construct a sentence properly. Grammatical
बेस ही होती है जो एक सेंटेंस को मीनिंग देती है। उसके अलावा यू मस्ट हैव रिसर्च स्किल्स। इफ आई एम टेलिंग यू, और इफ योर क्लाइंट इज टेलिंग यू टू राइट एन आर्टिकल ऑन a refrigerator, a particular type of refrigerator, for example Dollins, and you never had the Dollins refrigerator in your life, or you might not have heard that um, name ever in your life, तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। यू कैन नॉट राइट ऑन योर ओन। आप अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन बना के नहीं लिख सकते। व्हाई? बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन विल नॉट बी यूजफुल। इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे वही यूजफुल होती है जो ऑथेंटिक हो। सबसे पहले गूगल जो है वो वही इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है जो कि ऑथेंटिक है। इफ योर इंफॉर्मेशन इज इनवैलिड और इट इज नॉट ऑथेंटिक, देन यू आर लैकिंग योर रिसर्च स्किल्स, और आपकी वेबसाइट को बहुत ज्यादा डिग्रेड कर देगा गूगल, उसको रैंक नहीं करेगा। सो यू मस्ट हैव दोज रिसर्च स्किल्स। फॉर दोज हु हैव डन देयर एमफिल एंड बीएस, आप लोगों ने रिसर्च पेपर्स लिखे होंगे, तो उसमें भी यही होता है कि यू हैव टू रिसर्च मोर एंड मोर सोर्सेज, ताकि आप जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, जो आप चीज कन्वे करना चाह रहे हो, इट इज क्लियर। ठीक है। देन कम्स द क्रिएटिविटी। यू नो, विदाउट क्रिएटिविटी कंटेंट इज नथिंग। एक बात मैं सिंपल वर्ड्स में भी कह सकती हूँ, और उसी को मैं क्रिएटिविटी के साथ भी कह सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बाहर बारिश हो रही है, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि इट इज रेनिंग आउटसाइड। बट टू इंट्रोड्यूस क्रिएटिविटी इन माई राइटिंग, और टू इंट्रोड्यूस क्रिएटिविटी इन दैट particular sentence, what I can say is the cold breeze brushed my face and water from the sky sprinkled. So, you know, you can use your creative impact। आप क्रिएटिविटी को यूज करके लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो आपसे आपकी चीज को पढ़ें। द मेन पर्पस और द मेन थिंग दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, कि आपका कंटेंट जो है वो सिर्फ लोग तभी रीड करेंगे जब वो इंटरेस्टिंग होगा, जब उसमें कुछ नया होगा। ठीक है। अब हर चीज में, फॉर एग्जांपल लेमन मैक्स लॉन्ग बार जो है, उसमें why are they saying that it has the power of 100 lemons? Because they are trying to sell their product. So if you want to sell your content, what you have to do is use similar kind of strategies. You have to be creative. So being creative is not only through your expressions and through your actions, but also through your words. क्रिएटिव राइटिंग स्कूल में करवाई जाती है। राइट अ स्टोरी, आपको एक आउटलाइन दे दी जाती है, यू हैव टू राइट योर स्टोरी ऑन दैट। आपको स्टोरी खुद से बिल्ड करनी पड़ती है, या आपको पर्टिकुलर वर्ड्स दे देते हैं, हिंट्स दिए जाते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके वो जो स्टोरी है वो बिल्ड करें। तो वहां से आपके क्रिएटिव स्किल्स बिल्ड होना स्टार्ट होते हैं। दैट्स व्हाई क्रिएटिविटी इज इम्पोर्टेंट टू लीव एन इम्पैक्ट। What we have next is, what is the purpose of writing? What what do you think is the purpose of writing? In my opinion, it's not only, like I've discussed it, it is not only about informating your audience, but also persuading them to read, to sell your product, and to entertain. Because there are certain different types of writings जिसमें आपको जो है वो different strategies यूज करनी पड़ती हैं, ताकि ऑडियंस जो है वो आपकी चीज को लेना और पढ़ना पसंद करे। तो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए आपके राइटिंग को, उसके अलावा परsuasive होना चाहिए। इंफॉर्मेटिव में आपके सबसे पहले रिसर्च स्किल्स आते हैं, बिकॉज इंफॉर्मेटिव इज लाइक शेयरिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर सर्विस, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और अ पर्टिकुलर वेबसाइट। या अगर आप जनरल टॉपिक्स पे लिख रहे हैं, जैसे देयर इज अ फेमस वेबसाइट प्रो पाकिस्तानी, अब वो जो है उनके पेज पे आपको पॉलिटिकल न्यूज भी मिलेगी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी मिलेगी, इकोनॉमिकल भी मिलेगी, लाइक दे हैव ऑल काइंड ऑफ न्यूज। सो वो आपको इंफॉर्मेटिव चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके अलावा वो आपको परसुएट कर रहे हैं कि आप उसको रीड करें।
persuasive is like convincing your reader to take a specific action. अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे कोई भी चीज सर्च की है, उसमें मल्टीपल चीजें आई हैं, आप जो है वो उसकी हेडलाइन या टाइटल पढ़ते हैं और फिर उसको खोलते हैं। वाई? किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या पर्टिकुलर लिंक को आपने क्यों खोला? क्योंकि उसकी जो हेडलाइन थी उसने आपको परसुएड किया कि दिस माइट बी द थिंग आई एम लुकिंग फॉर। ठीक है, तो वो परसुएसिव राइटिंग में आ जाती है। फिर एंटरटेनिंग कैसे होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस जो है वो फर्स्ट लाइन या फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के ही बोर ना हो जाए। आपने उनको इस तरीके से क्यूरियोसिटी में रखना है, उसको इस तरह से आपने उनका इंटरेस्ट बिल्ड करना है, जैसे आप छोटे बच्चों का क्लास में करते हैं, बिकॉज किड्स हैव रियली शॉर्ट स्पैन टू फोकस। तो उनको फोकस रखने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कीप देम एंगेज्ड विद योरसेल्फ। तो वही आपने कंटेंट राइटिंग में करना होता है कि यू हैव टू कीप देम एंगेज। उनको हुक्स देते थे, हुक स्टेटमेंट्स दे कि व्हाट यू विल बी लर्निंग इन दिस ब्लॉग और आर्टिकल और प्रोडक्ट रिव्यू, और व्हाई शुड यू बाय दिस सर्विस एंड व्हाई शुड you buy the particular product. So there are certain different types of content, like we have blog posts and articles. These are the most famous ones. लोग समझते हैं कि content writing is only about writing blog posts and articles, but no, there are many different things that is included in content writing. First, we have blog posts and articles. Then we have social media posts. आप सोशल मीडिया खोलते हैं, फेसबुक पे आपने फॉर एग्जांपल डोमिनोज का पेज लाइक किया हुआ है, उन्होंने कोई नई डील लगाई है, उन्होंने साथ में कुछ लिखा भी है कि ये, या फॉर एग्जांपल ब्रॉडवे की डील होती है ट्यूसडे की, ट्यूसडे को होती है ब्रॉडवे की डील। तो वो जो ट्यूसडे वाली डील्स होती हैं उनके साथ उन्होंने इन्फॉर्मेशन सारी दी होती है, तो वो सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं आपके पास। फिर आपके पास आती है वेबसाइट कॉपी। वेबसाइट कॉपी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, आपने उससे रिलेटेड वेबसाइट पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है, आपने अलग से एक शॉपिंग का पेज बनाया, शॉपिंग का की कैटेगरी बनाई हुई है। उसके अलावा आपने अलग से होम पेज लिखा हुआ है कि व्हाट इफ अ पर्सन इज एंटरिंग द होम पेज, तो उसको इस बात की नॉलेज हम पहले से ही दे दें कि उसको इस वेबसाइट में क्या मिलेगा। फिर हमारे पास आती हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप दराज से भी कोई चीज लेते हैं या जिस जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर बाइंग कुर्ता फ्रॉम लाइमलाइट, तो अब वहां पे क्या होता है, आप पहले देखते हैं कि अच्छा ये 3 पीस है या ये 2 पीस है या ये 1 पीस है, उन्होंने नीचे लिखा होता है। आप स्टफ चेक करते हैं, आप उसकी प्राइस चेक करते हैं, उन्होंने नीचे लिखा होता है कि ये इस अगर साथ में पैचेस आ रहे हैं तो वो ये पैचेस आएंगे, या साथ में कोई टेसल वगैरह या और कोई लेस वगैरह आ रही है, तो वो सारा उन्होंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। तो दैट्स द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। फिर न्यूज लेटर्स आते हैं आपके पास। न्यूज लेटर और वाइट पेपर जो है ये थोड़ा टेक्निकल टाइप ऑफ थिंग्स है। न्यूज लेटर्स आपके पास यूजुअली ईमेल न्यूज लेटर्स होते हैं, जैसे आपने किसी को सब कोई भी आपने वेबसाइट खोली है तो वो आपसे पूछते हैं डू यू वांट टू रिसीव वीकली न्यूज लेटर्स और बाय मंथली न्यूज लेटर्स और बाय वीकली वट एवर। तो वो न्यूज लेटर्स क्या होते हैं, उसमें आपको वो ब्रांड्स जो है, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो पर्टिकुलर ब्रांड्स जो है दे यूजुअली सेंड यू अपडेट्स अबाउट देयर सेल्स। आपको अक्सर सेल की मैसेजेस आते हैं, ईसीएस पे सेल लग गई, या स्टाइलों पे सेल लग गई, ये सारे। वाइट पेपर जो है वो टेक्निकल होते हैं, एंड व्हाट दे हैव इज एक्चुअली दे आर मोर ऑफ अ केस स्टडी। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस ईच ऑफ देम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड आर्टिकल? अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक आई हैव डन जॉब दैट इन विच आई हैव बीन आस्क्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ ब्लॉग एंड एन आर्टिकल। ठीक है, तो आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक ब्लॉग और आर्टिकल में क्या डिफरेंस है, बिकॉज मेनी पीपल गेट कंफ्यूज कि मे बी बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर द सेम, बट नो, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, बट इट्स there is a difference, and but it's almost the same thing when you are writing it. ब्लॉग में आपके पास शॉर्टर कंटेंट होता है, शॉर्ट पीस, और वो ब्लॉग पोस्ट आपकी एक 500 700 इस तरह से होती है। बट आर्टिकल जो होते हैं दे आर मोर इन डेप्थ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एन iPhone 13 और या मे बी iPhone 13 Pro Max, ब्लॉग में जो है वो मैं उसके बेसिक फीचर्स बता दूंगी। ठीक है, बट
इफ आई एम राइटिंग एन आर्टिकल अबाउट देम, मैं पहले उसकी हिस्ट्री भी डिस्कस करूंगी। मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि वो पिछले फोन से किस तरह से डिफरेंट है। मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि इस फोन में क्या नई चीजें हैं, और ये किस तरीके से वर्क करता है। लोगों के रिव्यूज भी शेयर कर सकती हूँ, जो रियल पीपल दे शेयर देयर रिव्यूज ओवर द इंटरनेट, तो उनके रिव्यूज भी मैं शेयर कर सकती हूँ कि हाउ अ पर्टिकुलर पर्सन थिंक अबाउट दिस प्रोडक्ट। So and um, that's a longer piece. What so again the next one is social media post. Social media post आपको पता है कि मैंने आपको बताया जैसे पर्टिकुलर ब्रांड या कोई भी प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन आप सोशल मीडिया मीडिया पे डालते हैं। अब सोशल मीडिया में कौन कौन सा आता है आपके पास? इंस्टाग्राम आ जाता है आपके पास, फेसबुक आ जाता है, लिंक्डइन, ट्विटर, और देयर आर मेनी अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स। अब तो ट्विटर का नाम एक्स हो गया, so it's been rebranded as X. So yeah, there are certain other platforms जहाँ पे आप ब्रांडिंग अपनी कर सकते हैं। So it is a short piece. Let's say that this is um, a social media page post. ये मुझे फेसबुक से मिली थी, so I screenshotted it. अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने एक पिक्चर शेयर की हुई है, मे बी शी इज अ कुक। ठीक है, सो विद 20 years of family cooking under her belt, डिनर रट्स। अब देखिए, इसी बात को वो ये भी कह सकते थे कि विद 20 years of cooking, she knows how to keep everything fresh and मतलब like bland, without piquing any interest या without building any curiosity. बट यहाँ पे उन्होंने वर्ड्स चॉइस उनकी ऐसी है कि other person would want to open the link that is given in the post। ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने नीचे एक कोट भी लगाया हुआ है। जिस पर्सन के बारे में ये पोस्ट है, ये कोट भी लगाया हुआ है कि आई कुक बिकॉज इट brings me and other joy. I find it relaxing. The more slicing and dicing, the better, and it's a great creative outlet for me. तो ये चीजें जो है, मे बी उसने ना ये कहा हो, उसने किसी और वर्ड्स में कहा हो, उसने सिर्फ ये कहा हो कि आई लाइक कुकिंग बिकॉज लोग खुश होते हैं मेरी कुकिंग से, लोगों को पसंद है। तो उसको बेटर अंदाज में आपने किस तरीके से पोस्ट किया, जिस तरह से इन्होंने किया है। और इसी की वजह से जो इनके पास ट्रैफिक आएगी, एक तो वो रेलिवेंट ट्रैफिक होगी जिनको कुकिंग में इंटरेस्ट है, और दूसरी वो ऑडियंस होगी जो इस चीज को पढ़ के उनका दिल करेगा कि अच्छा, देयर वुड बी सम स्टोरी बिहाइंड इट, सो व्हाई शुडंट आई क्लिक ऑन इट। तो वो उससे भी आपके पास ऑडियंस आगे आ जाएगी आपकी, जो जहाँ पे लिंक आपको डायरेक्ट कर रहा है। फिर होती है वेब कॉपी। अब व्हाट इज अ वेब कॉपी? वेब कॉपी जो होती है वो आपकी वेबसाइट पे अच्छा, आर्टिकल्स भी आपके वेबसाइट पे ही होते हैं, बट वेब कॉपी जो है आपके होम पेज पे होती है, जहां पे आप लैंड करते हैं। लाइक इफ यू आर ओपनिंग अ वेबसाइट, तो जो फर्स्ट पेज उसका डॉट होम वाला आता है ना, वो आपके पास वहां पे वो लैंडिंग पेज होता है आपका, आप वहां पे लैंड कर रहे हैं। उसके अलावा ब्लॉग्स का अलग से पेज होता है। सो वेब कॉपी इज actually the content that appears on the website. It usually includes all the text-based elements. And what is their purpose? They guide visitors. You'll be seeing these things in this website, or they'll be like encouraging them to take specific actions. For example, उन्होंने नीचे लोगों के रिव्यूज डाले हुए हैं कि कोई बंदा है, वो कह रहा है कि आई बॉट दिस प्रोडक्ट एंड इट्स ऑफ ग्रेट क्वालिटी एंड सच थिंग। तो वो जो है वो आपके पास, उससे लोग बहुत इंप्रेस होते हैं कि अच्छा यार, ये तो इस पे रिव्यूज हैं, तो इसका मतलब है कि ये लेजिट है। ठीक है, उसके बाद लेट्स सी एग्जांपल। ये आपके पास, आपने एक पेज खोला, ये एक बिजनेस की थी वेबसाइट। तो इसमें क्या है कि इट्स अबाउट अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, गेट डाउन टू बिजनेस एंड ग्रो सेल्स, ये आपकी हेडलाइन होती है, जिसको रीड करके ही कस्टमर का दिल करेगा कि वो अगली लाइन पढ़े। अगर ये बोरिंग सी होगी तो वो आगे भी नहीं जाएगा, वो फौरन से आपकी
बैक पे चला जाएगा वापस। engage your customers and boost your media your business with Mailchimp। अब ये कोई पर्टिकुलर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि हम ये काम कर सकते हैं, हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं एंड अदर थिंग। ठीक है, तो वो लोग कहेंगे कि अच्छा ये इस तरह से काम कर रहा है, लोग और भी ब्रांड्स को करेंगे, लोग और भी ब्रांड्स को विजिट करेंगे, क्योंकि आप जो है जब वो कोई सर्विस लेनी होती है या कोई कपड़े भी लेने होते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज लेनी है, तो आप यूजुअली यही करते हैं कि आप लोगों से डिफरेंट लोगों से पता करते हैं, डिफरेंट जगहों से, और जहाँ पे आपको सबसे रीजनेबल मिलता है आप वो चीज देते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे पेज पे जो है वो कस्टमर को जो है वो इंट्रीग किया जाएगा कि आपको ये सर्विस लेनी चाहिए, व्हाई शुड यू बाय दिस सर्विस, हाउ दिस सर्विस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, और ये किस तरीके से आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट अप वी हैव द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल यू आर अबाउट टू बाय एन आईफोन, आपको कैसे पता चलेगा कि दिस आईफोन हैज पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस, और इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या कैमरा कितना है, इसकी स्पेस कितनी है, इसकी स्क्रीन कितनी है, इसकी बैटरी कितनी है, इसकी बैटरी हेल्थ कितनी है। तो ये चीज आपको पता करने के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ से आएगी? वेयर एवर यू आर सीइंग द प्रोडक्ट, वहीं पे आपके पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने दराज से एक स्क्रीनशॉट लिया है, ये आपके पास एक शू रैक था, ठीक है, या ऑर्गेनाइजर था। तो ये यहाँ पे जो है उसकी सबसे पहले आपके पास हेडलाइन दी हुई है कि दिस इज 4 लेयर स्टैकेबल शू रैक। ठीक है, अब आपने ये पढ़ लिया, आपने कहा अच्छा यार ये तो मुझे चाहिए,